السلام علیکم، میری دنیا پروگرام کے ساتھ عائشہ ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، وطن عزیز کے مختلف شہروں کے عوام کن مسائل سے ہیں دوچار؟ کیا انتظامیہ ہے ان کی مددگار یا صرف ہیں بے بس اور لاچار؟ کس شہر کی وجہ شہرت ہے؟ کوئی سوغات، پھل یا پہناوا یا پھر کچھ اور؟ دیتے ہیں ہم آپ کو ملک بھر سے ایسی اہم معلومات جن کا پہنچنا ہے آپ تک بہت ضروری۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے میری دنیا نے کس کی ویران دنیا کو آباد کیا، رنگ برنگی مرغیاں پالنے کا شوق کس کو ہے، ثقافتی ورثے کے عالمی دن پر پاکستان میں موجود ایک قدیم تہذیب کی بات، اور بڈے سائی نے کس سے منہ موڑا، وڈیرا طیش میں کیوں آیا، کھیل کے میدان میں پولیس گردی کیسے ہوئی، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ لیکن پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ گھوٹکی میں وڈیرا آپے سے باہر ہو گیا، محنت کش پر بدترین تشدد کے بعد سر کے بال مونڈ ڈالے، اسی پر بس نہیں کیا، زنجیروں میں جکڑ کر بے ہوشی کی حالت میں ویرانے میں پھینک دیا۔ کوئٹہ سے اغوا کیا گیا ڈاکٹر بازیاب نہیں ہو سکا، پی ایم اے نے 20 اپریل سے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں او پی ڈیز میں ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ میری دنیا نے حسنین کے گھر والوں کی ویران دنیا آباد کر دی، پروگرام میں خبر نشر ہونے پر چیچا وطنی کے 14 ماہ کے مخفی بچے کو بازیاب کرا کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام دھیر کوٹ میں دل فریب منظر پیش کرتے اور آسمان کی بلندیوں کو چھوتے درخت حکام کی عدم توجہی کے باعث اپنا وجود کھونے لگے۔ ضلع بدین میں لاکھوں ایکڑ پر سورج مکھی کاشت کرنے والے مناسب نرخ نہ ملنے پر مایوسی کا شکار، بڈے سائی نے کاشتکاروں سے منہ ہی موڑ لیا۔ شوق کا کوئی مول نہیں، ملتان میں نوجوان نے گھر میں نایاب اور رنگ برنگی مرغیاں پالی، ان کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ اور سکھر میں کھیلا خواجہ سراؤں نے کرکٹ میچ، وکٹ گرنے پر ٹھمکوں کے ساتھ رقص، شہریوں کے چہرے کھلا اٹھے، بھارت کے خواجہ سراؤں کو بھی میچ کھیلنے کا چیلنج کر دیا۔ تو ابھی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ وڈیرا راج کی زد میں ایک بار پھر آ گیا محنت کش، گھوٹکی میں وڈیرے نے زبردستی زمین خریدنی چاہی، انکار پر لاچار و بے بس غریب پر کیا بدترین تشدد، سر کے بال مونڈ ڈالے، عبد المناف ذلت برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا، وڈیرے نے بے ہوش محنت کش کو زنجیروں میں جکڑا اور جانوروں کی طرح ویرانے میں پھینک دیا۔ مزید دیکھتے ہیں برکت علی کی رپورٹ میں۔ وڈیروں کے ہاتھوں انسانیت کی تذلیل کا سلسلہ نہ رک سکا۔ گھوٹکی کے نواحی گاؤں حبیب لغاری میں وڈیرا سرفراز لغاری محنت کش عبد المناف سے 2 ایکڑ اراضی خریدنا چاہتا تھا۔ محنت کش نے انکار کیا تو وڈیرے نے اسے گھر سے اغوا کروا لیا اور اپنے ڈیرے پر لے گیا، جہاں اس کے سر کے بال مونڈ ڈالے اور بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد زنجیروں میں جکڑ کر بے ہوشی کی حالت میں پھینک دیا۔ اہل علاقہ نے محنت کش کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر ورثاء کو اطلاع دی۔ دوسری طرف پولیس نے روایتی بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی قسم کی کارروائی سے انکار کر دیا ہے۔ ادھر کوئٹہ سے ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کے باہر سے اغوا ہونے والا ڈاکٹر بازیاب نہیں ہو سکا، پی ایم اے نے 20 اپریل سے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈیز میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، جس کے سبب علاج کے لیے آنے والے مریض پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں فرید اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کے ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ کے باہر سے 15 اپریل کو محکمہ صحت کا اغوا ہونے والا کوآرڈینیٹر ڈاکٹر امیر بخش حال بازیاب نہیں ہو سکا، جس کے خلاف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بلوچستان نے احتجاجاً 20 اپریل سے صوبے کے تمام سرکاری اسپتالوں کی او پی ڈی سے 3 گھنٹے کی بائیکاٹ کی کال دی ہے۔ کوئٹہ کے سول اور بی ایم سی سمیت دیگر سرکاری ہسپتالوں میں روزانہ تقریباً 8,500 سے زائد مریض او پی ڈی میں علاج معالجے کی غرض سے آتے ہیں۔ آئے دن ڈاکٹروں کی ہڑتال اور آئے دن یہاں پہ مریضوں کا آنا جانا اور مریضوں کے لیے پریشانی یہ روز کا معمول بن گئی ہے۔ ایک تو جو ہے ادھر پرائیویٹ اسپتالوں ہم لوگ کا جیب خالی کرتا ہے، ادھر جب آتا ہے ادھر 2-3 گھنٹے ڈاکٹر لیٹ آتا ہے اور آئے روز ہر ہفتے جو ہڑتالیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر امیر بخش کو تاحال بازیاب کرانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ مغوی ڈاکٹر کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کیمرامین خورم شہزاد کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔
नाज़रीन, मेरी दुनिया प्रोग्राम में नशर की जाने वाली खबर ने पुलिस को काम करने पर मजबूर कर दिया। चंद रोज कबल चीचा वतनी के मोहम्मद हसनैन के अगवा की खबर हमारे प्रोग्राम मेरी दुनिया का हिस्सा थी। पुलिस ने इस खबर का नोटिस लिया और कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 14 माह का मोहम्मद हसनैन बाजियाब करा लिया गया। डीपीओ का कहना है कि ये केस उनके लिए एक चैलेंज बन गया था। वालिदैन ने दुनिया न्यूज का खुसूसन शुक्रिया अदा किया। मजीद दिखाते हैं असद अब्बास की रिपोर्ट में। प्रोग्राम मेरी दुनिया में नशर हुई खबर मोहम्मद हुसनैन के अगवा की तो पुलिस आई हरकत में। चीचा वतनी से 1 माह कबल अगवा होने वाले 14 माह के मोहम्मद हुसनैन को पुलिस ने बाजियाब करा के वरसा के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम को मुल्तान से जबकि उसकी निशानदही पर बाकी 4 मुलजिमान को शम्सपुरा चीचा वतनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान में 3 खातीन और 2 मर्द शामिल हैं। मुलजिमा समीना लोगों के घरों में काम करती है और वकुआ के रोज मगवी बच्चे के घर के सामने से गुजर रही थी कि बच्चे को देखकर उसका दिल बेईमान हो गया और वो उसे उठा कर ले गई। मोहम्मद हुसनैन को वरसा के हवाले करने की तकरीब टीएमए हॉल चीचा वतनी में मुनक्किद हुई, जिसमें डीपीओ साहिवाल ने कहा कि ये केस पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था और जदीद साइंटिफिक तरीका तफ्तीश के जरिए मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। जब बच्चे को उसकी मां के हवाले किया गया तो रिक्कत आमेज मनाजर देखने में आए। बच्चे की बाजियाबी के बाद उनके घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। बच्चे के वालिद और दादी ने बच्चे की बाजियाबी पर दुनिया न्यूज का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा बच्चा मैंने मिल गया, मेरा पुत्र। उस तो बाद दुनिया न्यूज वाले का शुक्रिया बहुत बहुत कि उन्होंने साडे नाल तावन किया। डीपीओ साहिवाल ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर SHO सिटी और उनकी टीम को तारीफी असनाद भी दी। आजाद कश्मीर के सयाहती मुकाम धीरकोट की सैर आपको कराएंगे और मेरी दुनिया में और क्या क्या चल रहा है आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरी दुनिया की कुछ सयाहती मकामात की बात करें तो आज दुनिया भर में सकाफती विरसे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद मुख्तलिफ कदीम तहजीबों की सकाफत, विरसे और आसार कदीमा को महफूज करना और इससे मुतालिक आगाही फ्राहम करना है। पाकिस्तान में सकाफती विरसे से मालामाल शहर टेक्सला कभी बरसगीर पाको हिंद की पहली दरसगाह भी था। ये मुकाम तो आज भी दुनिया भर के सयाहों के लिए मरकज़ निगाह बना हुआ है। इस शहर ने कौन कौन सी तहजीबों को अपने दामन में समेट रखा है, इसका अहवाल बता रही हैं रिदा अशरफ इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी से 22 मील के फासले पर वाक़ई ये कदीम शहर टेक्सला है, जो आज सदियों बाद भी अपनी कहानी पूरी आबोताब के साथ सुना रहा है। इस शहर के दरो दीवार बता रहे हैं कि किस किस ने इसे अपना मस्कन बनाया और मकीनों के शबरोज कैसे थे। गंधारा तहजीब का मरकज कहलाने वाला ये शहर कई अरसे तक यूनानी हुक्मरानों की सल्तनत बना। महाराजा अशोका आजम के जमाने में बुद्धमत तालीम का गढ़ कहलाने वाले इस शहर में अब भी बुद्धमत की इबादत गाहों और खानकाहों के नकूश दरख्शा माजी की दास्तान सुना रहे हैं। टेक्सला में जूलिया यूनिवर्सिटी के खंडरात बरसगीर की धरती पर बुद्ध तालीम की पहली दरसगाह के नकूश छोड़े हुए हैं। ये कह सकते हैं कि वर्चुअली ये शायद दुनिया की पहली यूनिवर्सिटियों में थी, जिसमें के सब कॉन्टिनेंट का एक सबसे बड़ा जिसको हिंदुस्तानी जिसको फॉलो करते हैं जनकिया जो है, जिसने पढ़ा भी वहाँ पर, जिसने पढ़ाया भी वहाँ पर, फिर उसने एडवाइस भी यहाँ पर जो है बादशाह को किया। उस लिहाज से देखें तो बड़ी रिच इसकी जो है वो हिस्ट्री है।
टेक्सला का तारीखी म्यूजियम आपको गंधारा आर्ट, जेवरात, ज़रूफ और दीगर नवादरात के बारे में आगाही दे रहा है। हमारे पास हथियाल और सरायखोला, ये दो साइड जो है प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड से उनका ताल्लुक है, जो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 4000 साल पुरानी वो चीज़ें भी पड़ी हैं। और हमारे पास जो गंधारा की जो सिविलाइजेशन या जो गंधारा की पीरियड है, ज्यादातर चीजें वो पड़ी हैं। कदीम सकाफती विरसे से मालामाल टेक्सला शहर में नौजवान नस्ल के लिए मालूमात का बेशबहा खजाना मौजूद है। वक्त ने कई धारे बदले, मगर टेक्सला शहर का तारीखी हुस्न आज भी जिंदा है, जो आने वाले लोगों को अपनी अजमत रफ्ता की हसीन दास्तान सुनाता दिखाई देता है। कैमरामैन आबिद अली के साथ रेदा अशरफ, दुनिया न्यूज, टेक्सला। आजाद कश्मीर के सयाहती मुकाम धीर कोट को कुदरत ने हसीन मनाजिर से नवाजा है। हर सू बिखरे दिलफरेब नजारों का समा बनने वाले और आसमान की बुलंदियों को छूते दरख्त हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस एक एक करके अपना वजूद खो रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से ताजीम यासिन। आजाद कश्मीर के दाखिली रास्ते क्वाला से 15 किलोमीटर के फासले पर सतह समुंदर से 6000 फुट की बुलंदी पर वाक़ा धीरकोट सरसब्ज पहाड़ों, बलखाते नदी नालों, खेतों खलियानों और घने जंगलात में घिरा है। आजाद कश्मीर के इस हसीन सियाती मकाम पर सियाह साल भर तफरीह की गर्ज से आते हैं। सबसे मेन जो शारा है इसको बेहतर बनाया जाए, ये अगर इसको मुकम्मल कर लिया जाए तो यहाँ से आऊँगा ज्यादा रुख होगा। ये इतनी खूबसूरत जगह है, ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी। ये एक किस्म स्विट्जरलैंड है। धीरकोट के हसीन मनाजर का नजारा करने के लिए आने वाले सियाहों का कहना है कि इलाके की खूबसूरती का मौजब बनने वाले आसमान की बुलंदी को छूते दरख्त मुनासिब हुकूमती देखभाल न होने के बाइस मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर एक एक करके खत्म हो रहे हैं। महकमा जंगलात उसको भी शायद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि दरख्तों की जो प्रोटेक्शन है वो सिर्फ यही नहीं है कि उसको कटाव से बचाया जाए, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि क्या यहाँ पे कोई वायरस भी आ सकता है, कोई दरख्तों को कोई दीगर बीमारियां भी लाक हो सकती हैं। वादी धीरकोट में कुदरत के खूबसूरत रंग हर तरफ बिखरे नजर आते हैं, लेकिन इस इलाके को जाने वाली शाहराह की तामीर का काम गुज़श्ता 8 साल से सुस्त रवि का शिकार है। सड़क की अबतर सूरत-हाल के बाइस खित्ता कश्मीर के इस पुरकशिश इलाके की सियाहत से हजारों लोग हर साल महरूम रह जाते हैं। कैमरामैन हूं नवीद के साथ ताजीम यासीन, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। और अब आपको बताते हैं कि बलोचिस्तान में सिक्योरिटी का मसला इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। बलोचिस्तान हुकूमत का कहना है कि हुकूमती रिट चैलेंज करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। हालात बेहतर करने के लिए बातचीत को अब भी तरजीह देते हैं। मजीद बता रहे हैं कोयटा से शाहनवाज बलोच इस रिपोर्ट में। सूबा बलोचिस्तान मुख्तलिफ अदवार में आलत जंग में रहा है और नई बनने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सूबे में अमन अमान का कयाम रहा है। बलोचिस्तान में तुर्बत जैसे सानियात माजी की तरह अब भी रोनुमा हो रहे हैं। सूबाई वजीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि मुज़ाकरात हमारी अवलीन तरजीह है, मगर अमन अमान की सूरत हाल पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। हमारी बिल्कुल पॉलिसी है कि हम ये डायलॉग करें इन लोगों से जो बाहर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कोई भी मसला, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो इससे अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ साथ किसी को रेट ऑफ द स्टेट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां बलोचिस्तान में कॉमपरस्त सियासी जमातों को वफाक से वसाइल के इख्तियार पर बेशुमार शिकायत हैं, वहीं मुसल्लह तंजीमों की जानिब से आम लोगों के कत्ल को सियासी मुबस्सरीन मुज़ाकरात में खलल का बाइस समझती हैं। अगर आपने मजदूरों के साथ ये किया, ये मेरे ख्याल में उनके लिए अखलाकी प्रेशर उन पर बढ़ेगा और उन्होंने ये गलत किया। और जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वो तो कहते हैं कि मुज़ाकरात अगर वो करना चाहें हम जरूर करेंगे। बलोचिस्तान में कॉमपरस्त जमातों की हुकूमत ये दावे तो कर रही है कि सूबे में बड़े मंसूबों के आगाज से खुशहाली आएगी, जिसके लिए तरक्याती बजट में इजाफे के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन कर रही है। कैमरा टीम के साथ शाहनवाज बलोच, दुनिया न्यूज, क्वेटा। एक हंगामे पर मौकूफ है घर की रौनक। नौहाए गम न सही, नगमाए शादी ही सही। हाफिजाबाद की जिलाई इंतजामिया ने महफिल मुशायरा करवाकर शहरियों के दिल जीत लिए। शोरा के शानदार अशार अरसे तक हाजरीन को अपने सहर में जकड़े रखेंगे। अपनी तर्ज के मुनफरिद शोरा ने ऐसा समा बांधा कि शुरका महफिल के इख्तिताम तक बैठने पर मजबूर हो गए। देखते हैं हाफिजाबाद से कैसर नदीम की रिपोर्ट। हाफिजाबाद में सजी महफिल मुशायरा किया इनेकाद जिला इंतजामिया ने। शोरा ने लगाए महफिल को चार चांद और हाजरीन को किया अपने शहर में गिरफ्तार। ये हादसा ही अजब है, जुबान हमको मिली तो सारे शहर को ऊंचा सुनाई देने लगा।
तख्लीकी कलाम पर दी गई खुल के दाद। तो रुमानवी शायरी सुनने के लिए था हर कोई बेताब। किसी ने किया मसाइल को उजागर तो किसी ने अपनाया मज़ाहिया अंदाज। और तुम अपने सर को उठा लो हमारे शाने से, हम अपना बोझ न मुश्किल उठाए। कोई मिलाता रहा काफिये से काफिया तो कोई निकला रदीफ का परिस्तार। किसी का अंदाज था जारहाना तो किसी का था महबूब के सहर में गिरफ्तार। कोई निकला गालिब का हमनवा तो किसी को भाया मीर तकी मीर। किसी को हकीमुल उम्मत के अशार ने सताया तो कोई निकला सागर की जुल्फों का असीर। जग में चर्चे करने लेकिन जानता कोई नहीं, दोहरे पन की जमाने में कोई हद चाहिए, बीवियों से डरते सब है मानता कोई। हेड बलोकी जैसी मारूफ तरीन सैरगाह अफसरों की गफलत के बायस वीरानी का मंजर पेश कर रही है। तफरीह के लिए मौजूद सामान जंग आलूद हो गया और जो बचा उसके पुर्जाजात चोरी कर दिए गए। मलिक अब्दुल रज़ाक की रिपोर्ट देखते हैं। हेड बलोकी के नाअहल अफसरान करोड़ों रुपए हड़प कर गए। इंतजामिया की लापरवाही की बदौलत मारूफ सैरगाह वीरानी का मंजर पेश करने लगी। पुल की सड़क टूट फूट का शिकार है। हेड बलोकी हादसात का मुरक्का बन गया, जबकि पुल पर से भारी भरकम ट्रक गुजरते हैं, जिससे पुल टूटने का अंदेशा रहता है। अमला अफसरों के घरों में ड्यूटियां देने लगा, जबकि तनख्वाहें सरकारी खजाने से ली जाती हैं। वर्कशॉप से करोड़ों रुपए का कीमती सामान गायब हो गया। पुल की मजबूती के लिए लाया गया आहनी सरिया जंग की नजर होने लगा। वर्कशॉप में कीमती पाइप, गाड़ियां, बोगियां, ट्रैक्टर, जीप, टरबाइनें और आबी दरवाजे समेत दीगर कीमती सामान और मशीनरी बेयारो मददगार पड़ी है, जबकि लाखों मालियत का कीमती सामान चोरी करके रकम खुर्द-बुर्द कर ली गई। लाखों की लागत से बनने वाली मस्जिद भी छत से महरूम है। मकामी और समाजी हलकों ने खुली करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो पुलिस वाले खेल के मैदान में भी पुलिस गर्दी से बाज नहीं आए। माजरा क्या है बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। अब आपको बताते हैं कि फैसलाबाद में पुलिस ने पुलिस गर्दी किस तरह दिखाई। फैसलाबाद में फेस्को और पंजाब पुलिस की टीमों के दरमियान कबड्डी मैच खेला गया। फेस्को ने पुलिस की एक ना चलने दी और धड़न तख्ता कर दिया। पुलिस ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया और मैदान में भी रिवायती पुलिस गर्दी का मुजाहरा करने से बाज न आई। जबरदस्ती ट्रॉफी पर हक जमाकर इसकी मुश्तरका हकदार बन गई। आखिर ये माजरा है क्या, जानते हैं फैसलाबाद में अपने नुमाइंदे नईम कैसर से। झपटकर पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये शेर सादिर आता है खून गरमा देने वाले खेल कबड्डी पर। छीना झपटी तुर्रा इम्तियाज है कबड्डी का और जारी रहती है ये जंग राइडर्स और स्टॉपर्स के दरमियान आखिरी वक्त तक। फैसलाबाद में भी कुछ हुआ ऐसा ही, जहां फेस्को और पुलिस हुई आमने सामने कबड्डी के मैदान में। दोनों इदारे भी तगड़े, दोनों टीमों के खिलाड़ी उससे भी ज्यादा तगड़े। खेल के दौरान दोनों टीमों ने खूब जोर आजमाई की। ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ कबड्डी ਦੇ होने चाहिए। मुझे ये खेल बहुत अच्छा लगा। कबड्डी इसी तरह जिंदा रहना चाहिए। पुलिस के शेर जवानों ने की बड़ी हिम्मत, मगर फेस्को के जवानों में थी बिजली की सी फुर्ती, जिसके आगे न चल सकी मुहाफिजों की और जीत ठहरी मुकद्दर फेस्को का। पुलिस तो फिर पुलिस है ना, कहाँ मानने वाली थी अपनी शिकस्त। बस फिर क्या, शुरू कर दी जोर जबरदस्ती और ट्रॉफी पर जमा लिया अपना हक। मैच के मेहमान खुसूसी फेस्को चीफ रशीद असलम और SSP ऑपरेशन आतिफ ने फतह से सरफराज होने वाली टीम में इनामात तकसीम किए। पलटना झपटना, झपट के पलटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। उछलते कूदते हुए ये नौजवान पंजाब की सकाफत के असल अलंबरदार हैं। कैमरामैन सदाम अली के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का नारा धरा का धरा रह गया। कबूला का 44 साल पुराना स्कूल 4 दीवारी समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम। बच्चों के लिए न फर्नीचर न छत, खुले आसमान तले और दरख्तों तले पढ़ने पर मजबूर। जाहिद गौस की रिपोर्ट में देखते हैं।
तालीम कभी भी हुक्मरानों की तरजीह नहीं रही, सिर्फ नारे और वो भी खोखले। मुकद्दर बने अवाम का। खस्ता हाल इमारत, 4 दीवारी से महरूम, पीने का पानी न, सिक्योरिटी बाढ़, ग्राउंड, मकीनों के गुजरने का रास्ता, बुनियादी सहूलियात न, बैठने के लिए फर्नीचर। ये है पहचान कबूला के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की। 44 साल पहले मारज वजूद में आने वाला ये स्कूल आज भी है बुनियादी सहूलतों से महरूम। कौम का मुस्तकबिल और चमकते सितारे का नहीं। तपती धूप हो या सर्द मौसम, मासूम बच्चे हैं खुले आसमान के नीचे अदम तहफ्फुज का शिकार। ये बच्चे आला हुक्काम की राह तकने पर है मजबूर, लेकिन ईडीओ आरिफ वाला का वही रिवायती जवाब, बहुत जल्द मसाइल हल हो जाएंगे। अब देखते हैं जल्द महीनों पर मुहित है या सालों पर। सराइकी वसेब के साथ नाइंसाफियों का सिलसिला जारी। हुक्मरानों के खवातीन को हुनरमंद बनाने के दावे हवा में तहलील। मुहिम सिर्फ अखबारी इश्तहारात तक ही महदूद दिखाई देती है। लिया में 10 साल कबल शुरू होने वाले विमेन टेक्निकल इंस्टीट्यूट का मंसूबा सियासत की नजर हो गया। रुकावट फंड्स की अदम दस्तियाबी है या कुछ और, किसी को तो जवाब देना होगा। लिया से मोहसिन अदील की रिपोर्ट। जनूबी पंजाब का एहसास महरूमी कम होगा। ये खित्ता कभी हुक्मरानों की तवज्जो हासिल कर पाएगा? है कोई जो यहाँ के मकीनों के दुखों का मदावा कर सके, या फिर सिर्फ नारों से ही काम चलाया जाता रहेगा? लिया में जनूबी पंजाब का इकलौता टेक्निकल इंस्टीट्यूट बराए खवातीन 10 साल बाद भी हुक्काम की तवज्जो का मुंतजिर। खातीन को हुनरमंद बनाने का मंसूबा खटाई का शिकार। कॉलेज की नामुकम्मल इमारत और जंग आलूद बसें मौजूदा हुक्मरानों से कर रही हैं सवाल कि सराइकी वसेब का है क्या कसूर। सवाल ये कि पसमानदगी के शिकार लिया में खातीन को हुनरमंद बनाने का मंसूबा 10 साल से सुस्त रवि का शिकार क्यों है? क्या सराइकी वसेब का मुकद्दर अंधेरा ही है और कब तक सारे फंड्स तख्त लाहौर पर ही खर्च होते रहेंगे? नशा बेचने वाले करते हैं जेबें गर्म सरकारी हुकाम की और चोरी छुपे चलाते हैं अपने घिनौने कारोबार। लेकिन खानेवाल में हुआ कुछ इसके उलट। होम्योपैथिक स्टोर पर एमपीए, पुलिस, एक्साइज और ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारकर शराब और ममनुआ अद्वियात बरामद कर ली। पुलिस ने होम्योपैथिक स्टोर के मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद देखते हैं साजिद परवेज की इस रिपोर्ट में। इंसानियत के कातिल, इंसानियत के दुश्मन और बेचते हैं जहर अद्वियात की शक्ल में। नई नस्ल की बेराहरवी का सामान है खुलेआम दस्तयाब और ये कातिल है अब तक कानून की गिरफ्त से आजाद। खानेवाल में हुआ घेरा तंग ममनुआ अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ। एमपीए निशात दाहा पुलिस को लेकर पहुंचे मनशियात फरोख्त करने वाले के अड्डे पर और हाथ आया जहर तैयार करने वाला। बरामद हुई अल्कोहल बड़ी मिकदार में। इरफान अरसा दराज से कर रहा था मनशियात फरोशी का धंधा होम्योपैथिक स्टोर की आड़ में। एक ऐसा हमने स्टोर पाया होम्योपैथिक की आड़ में जो नशावर चीजें बेच रहा था। वहाँ पर कोई होम्योपैथिक की मेडिसिन भी नहीं थी और तकरीबन 400 बोतल वहाँ से पकड़ी गई है। सैंपल लिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने और ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं इन्होंने अपनी कार्रवाई की है। जो इन्होंने बरामद किए हैं मनशियात बरामद की है, शराब की बोतलें वगैरह। मुलजिम बना हवालात का मेहमान और पर्चा कटने से था परेशान। शायद अब न हो फरोख्त खुलेआम मनशियात का सामान। इंसानियत के कातिलों पर होगा अब खौफ बराजमान। इसी में है इनका फायदा, वरना उठाएंगे फिर नुकसान। खेल का मैदान हो तो ख्वाजा सराबी किसी से पीछे नहीं रहते। सक्खर में होने वाला ख्वाजा सराओं का क्रिकेट मैच शहरियों की तफरीह का जरिया बन गया और पहुंच गए बड़ी तादाद में छोटे और बड़े। म्यूनिसिपल स्टेडियम में ख्वाजा सराओं ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं। जमाने को पता चलना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हर विकेट गिरने पर ख्वाजा सरा मिलकर रक्स करते रहे। इस बारे में अहवाल बता रहे हैं सक्खर से इसहाक होसू इस रिपोर्ट में। हाथों में ट्रॉफी और चेहरों पर मुस्कान लिए हंसते मुस्कुराते और रक्स करते ये हैं सक्खर के ख्वाजा सरा, जिन्होंने सोशल वेलफेयर की फीमेल डिपार्टमेंट से दोस्ताना मैच जीत लिया और खुशी में लगाने लगे पूरे ग्राउंड का चक्कर। उनके चेहरे थे कि खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। हाँ, बॉलिंग मैंने की और मैंने ना 61 स्कोर किया, 5 विकेटें ली मैंने। बस ये शौक था मुझे खेलने का, लेकिन क्या करूं, मेरा ख्वाजा सरा बन गई, नहीं तो मुझे बहुत शौक था आगे खेलने का। इंशाल्लाह मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देती जो आगे खेलती मैं। ख्वाजा सराओं की मैच की इतला पर जैसे पूरा शहरी उमड़ आया हो सक्खर के म्यूनिसिपल स्टेडियम में और लुत्फ अंदोज होते रहे खेल से, क्योंकि यहाँ तो हर बार पर ख्वाजा सराओं का रक्स था और तफरीह थी। शहरियों ने इस मैच के इनकाद को भी सराहा। ख्वाजा सरा तो ये कहने में भी पीछे नहीं रहे
کہ ان کا میچ بھارتی خواجہ سراؤں سے کرایا جائے۔ آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم شیمیل کمیونٹی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہے شیمیل کمیونٹی کا کہ ہمارے ایک ٹیم بنایا جائے اور اس کے انڈیا کی شیمیل کے ساتھ ہمارا میچ رکھے۔ میچ جیتنے پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی ڈاکٹر ارشد مغل نے ٹیم کو ٹرافی دی اور ان کے کھیل کو بھی سراہا۔ خواجہ سراؤں نے یہ ثابت کر دیا یہ میچ جیت کر کہ یہ لوگ بھی بڑے ہمت والے ہیں اور ان کے پاس بھی بڑا صلاحیتیں ہیں۔ خواجہ سرا بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ جب عام آدمی کو تفریح کے لیے ایسے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں تو خواجہ سراؤں کے لیے کیوں نہیں؟ خواجہ سرا نے یہ میچ جیت کر ثابت کر دیا کہ یہ کسی سے کم نہیں۔ کیمرہ مین اصغر علی باسی کے ساتھ اسحاق خسرو، دنیا نیوز، سکھر۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ آج جو خبریں ہم نے آپ تک پہنچائیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور مستقبل میں بھی میری دنیا پروگرام کے توسط سے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے پاکستان کے ہر علاقے سے ہر وہ خبر جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی آرا ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہم اس کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے میری دنیا شو۔ آپ ہمیں ٹویٹ کر سکتے ہیں میری دنیا شو میں۔ میری دنیا پروگرام سے اپنی ہوسٹ عائشہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔